Hello everyone, this is Navin Sekhawat. Welcome back on the YouTube channel English Sahitya. And today बात करेंगे हम एक नए राइटर की, नए फिलोसोफर की, जो रिलेटेड है कल्चरल स्टडीज से. एंड एज आई प्रोमिस दैट वी विल कवरिंग द डिफरेंट राइटर्स रिलेटेड टू different writers and texts related to cultural studies. So with a new philosopher and a writer here, we will be covering the works, the biography and the concepts related to cultural studies, and we can say the writer particular. बेसिकली ये जो राइटर जिनकी आज हम बात करेंगे, ये एक मैं आपको एक दो लाइनें सुनाता हूँ कि जिनको खबर नहीं है जमाने की, वो बात करते हैं मुझे आजमाने की. यानी कि ये जो राइटर हैं, ये पर्टिकुलरली बात करते हैं किसके बारे में, कि कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमें जो हमें कंट्रोल के अंदर रखता है, जो हमारी थॉट को कंट्रोल करता है. ठीक है, जो हमें किसी भी चीज़ का यूज़ करने के लिए उसी से स्टिक करता है बेसिकली. जैसे कि इफ़ वी आर गोइंग टू बाय शूज़, देन वी विल फाइंड दैट इफ़ the shoes of Adidas there, if the shoes are of Reebok there, Lotto and the different varieties. So we will find, we want to buy, or we wish to buy the shoes those are of the brand. So why these things are there in our mind. तो इन चीज़ों के बारे में बेसिकली मिशेल फुको बात करते हैं. और वो और भी एस्पेक्ट्स लाइक द ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग जो है उसको सेपरेट करते हैं टू मॉडर्न थिंकिंग. ठीक है, सो जैसे कि मैडनेस, ठीक है, मेडिसियंस, एंड ही टॉक अबाउट पावर, डिस्कोर्स, पेनोप्टिसिज्म एंड अदर things like archaeology is there. So these are the concepts basically of this writer. And the writer who is about which we are going to discuss today is Michel Foucault. So Michel Foucault, if you talk about particularly, then he is a French philosopher, and he was born in 1926 and died in 1984. And he basically what he did कि उन्होंने जो है अपनी फिलोसॉफी को, जो उनकी फिलोसॉफी है, he implied that philosophy to the different aspects, different fields, different areas of the studies of the humanities. So कैसे उन्होंने अपनी आइडिया, उनको फिलोसॉफी को, अपने आइडियाज को कैसे अप्लाई किया है, लाइक द फिलोसॉफी, द डिफरेंट areas, like the different fields of study, like history, political science, and then we have culture, then this psychology. So इनसे कैसे उन्होंने अपनी फिलोसॉफी को जोड़ा है, that all is given in these works of Michel Foucault. So as for exam point of view, we will be discussing these works and then the chronology of these works, because this is also important for net like examinations. And then we will be discussing the concept that is for today only, like power and knowledge concept. आज हम इसी की बात करेंगे. देन इन द फर्दर वीडियोस वी विल बी टॉकिंग अबाउट लाइक पैनोप्टिसिज्म, डिस्कोर्स, आर्कियोलॉजी, genealogy and the other concept related to Michel Foucault. So if we talk about the works of Michel Foucault, then we have Madness and Civilization. This is the first work, we can say, in 1961. You have to keep in mind the year of this work, 1961. Then we have The Birth of the Clinic, 1963, after 2 years. Then we have The Order of the Things, 1966, after 3 years. Then we have Archaeology of Knowledge, 1969, again after 3 years. And then we have Discipline and Punish, 1975. Then The History of the Sexuality, 1976 to 84. Actually, the different versions, the different volumes of this particular work had published. So these are the different volumes. First one is The Will of Knowledge, The Use of Pleasure, The Care of the Self, The Confession of the Flesh. So here you can see the different aspects, like he talked about the madness, civilization and clinic. You can understand like it is related to somehow the medicine and all. Then he talked about the order of the things, and then archaeology,
the concept of archaeology is there. Then discipline and punish. In discipline and punish, he talked about basically that how these punishment situations are changed right now. Like the traditional पहले क्या होता था कि जो पनिशमेंट थी वो एक ट्रेडिशनल वे में दी जाती थी. जो ट्रेडिशनल वे था दैट वाज लाइक द क्रिमिनल जो है वो उसके ऊपर स्टोन पेल्टिंग की जाती थी, या फिर उसको यानी कि बीच में जैसे गधे के ऊपर बैठा के काला मुंह करके उसको छोड़ दिया जाए. सो सच टाइप ऑफ पनिशमेंट्स वर देयर. बट इन प्रेजेंट टाइम द कंसेप्ट ऑफ प्रिजन केम इनटू एग्जिस्टेंस. लाइक अब जेल है, दे बेसिकली हाउ दे आर पनिशिंग द क्रिमिनल. दे वांट टू गिव हिम द मेंटल अनसेटिस्फैक्शन, यानी कि मेंटल प्रेशर देके, यानी कि उसकी जो मानसिकता है उसको चेंज करके उनको एक तरीके से वो क्या देते हैं, सजा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं. सो ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज कंसेप्ट्स इन दीज वर्क्स. he is talking about knowledge, pleasure, self and all. So we will be discussing all these in the further videos, but today we are going to stick with only topic that is power, knowledge, कंस्ट्रक्ट जो है जिनका दिया मिशेल फुको ने जो दिया था इन द वर्क द हिस्ट्री ऑफ द सेक्सुअलिटी 1974 टू 84. सो इसके अंदर बात करते हैं कि वो पावर क्या है, ठीक है, और नॉलेज कैसे रिलेटेड है पावर से. ठीक है, तो पावर आपको क्या लगता है, पावर क्या है? पावर की जो लॉज हैं जो हमारे लिए बने हुए हैं, या फिर जो गवर्नमेंट है, या फिर जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है, वो पावर है जिसको हम पावर समझते हैं, या फिर पावर कुछ और है? सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट थियरिस्ट और ट्रेडिशनल थियरिस्ट, पावर इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू sovereignty or the laws. And according to Marxist theorists, they looked at this particular concept of power as they thought that power is something that is related to that is स्टेट अपरेटस बेसिकली. ठीक है, उनके व्यू में जो है पावर वो स्टेट अपरेटस है. बट जो मिशेल फुको हैं वो इस चीज को अलग तरीके से सोचते हैं. ठीक है, सो आज उन्हीं के बारे में जानेंगे, उन्हीं के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि वो पावर के बारे में क्या सोचते हैं. सो पावर अकॉर्डिंग टू मिशेल फुको इज समथिंग डिफरेंट. अकॉर्डिंग टू द अदर थियरिस्ट, द ट्रेडिशनल थियरिस्ट, पावर इज व्हाट that is law, that is state apparatus, or that is something the power of the state we can say. But what Michel Foucault says, he says that power is nothing, like not nothing. Power is not related to these apparatuses and the state and all, but power is something that is power is everywhere. Power जो है वो omnipresent है. Power जो है वो एक वेब है, बेसिकली एक जाल है. ठीक है, और उसी जाल के अंदर हम सब रहते हैं. ठीक है, और जो पावर है वो बेसिकली रिलेट करती है नॉर्मल लाइफ से, ना कि अपर जो स्ट्रेटा हैं उनसे बेसिकली. तो ये कहते हैं कि पावर इज नॉट दैट इज रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशंस. पावर इज नॉट बिलोंग टू द institutional power. Power is not the power of group of people, not like that. But he talked about the power that is present everywhere. एग्जाम्पल लेते हैं इसका. अगर आप मान लो इफ यू गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है, आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, एंड देन यू गो टू डॉक्टर बत्रा और whoever who is expert of or who is dermatologist basically, and in your eyes he is an expert of that particular disease. So आप जाते हैं उनके पास and he will prescribe you ointment that you have to use this ointment on your skin, and then your skin will be recovered, or your treatment will be there by using that ointment on your skin. So आप जाते हैं and उनके पास वो अपनी नॉलेज को क्या करते हैं आपके पास, यानी कि वो पास करते हैं उस नॉलेज को, यानी कि अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं आपके पास, और आपके पास पहुंचाते हैं कि किस फॉर्म में, उस प्रोडक्ट की फॉर्म में, उस दवाई की फॉर्म में. ठीक है, और वो जो चीज है आप खरीदते हो क्योंकि आप क्या समझते हो कि ही इज एन एक्सपर्ट, दैट्स वाई आप उसको खरीदते हो. और ये जो प्रोसेस है, अगर मैं सपोज आई एम द टीचर हु इज बेसिकली veteran of theories or cultural theories, or you can understand this what I want to say, कि मैं
एक ऐसा एक्सपर्ट टीचर हूँ, एंड आप मेरे पास आते हैं एंड यू विल फाइंड दैट वट एवर आई एम टेलिंग यू टू क्रैक नेट एग्जामिनेशन और टू अंडरस्टैंड एनी थियरी और अंडरस्टैंड लिटरेचर और एनीथिंग एल्स, तो और आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं उस टाइम पे, मैं अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके आपको वो चीज बता रहा हूं, और आप उस चीज किसी चीज को पाने के लिए यू आर फॉलोइंग मी एज एन एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये जो रिलेशन है बेसिकली, कि जो एक जिसके पास किसी भी एक इंसान के पास नॉलेज है, और ही इज प्रोवाइडिंग और ही इज स्प्रेडिंग दैट नॉलेज, ही इज डिसेमिनेटिंग हिज नॉलेज और हर नॉलेज टू समवन, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो एक मार्केट भी क्रिएट कर रहे हैं ना उस प्रोडक्ट की। अगर मैंने बोला कि जाके आप शिव गंगा तेल लगाओ और आपके पैरों में जो दर्द है, एज ए डॉक्टर आई एम प्रेस्क्राइबिंग यू, एंड वो पैरों का दर्द जो है आपको ठीक हो जाएगा, तो मैं उसके साथ साथ क्या कर रहा हूँ, एक मार्केट भी क्रिएट कर रहा हूँ। सो दिस इज समथिंग दैट इज पावर इन द आईज ऑफ, इन द माइंड ऑफ मिशेल फूको। ये जो है वो पावर है किसकी, किसके व्यू में, मिशेल फूको के व्यू में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिशेल फूको। सो here this power and knowledge construct is there, so he according to him वो बात करता है पावर को एक इपिस्टेमोलॉजिकल वे में, यानी कि नॉलेज के वे में, इपिस्टेमोलॉजी लाइक स्टडी ऑफ नॉलेज। सो ही टॉक्ड अबाउट दिस पावर इन एज इपिस्टेमोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जो ये पावर का जो कंसेप्ट है, ये सम हाउ रिलेटेड टू हेजेमोनी, द कंसेप्ट ऑफ एंटोनियो ग्राम्स्की, ठीक है। तो पावर वो नहीं है जो हम समझते हैं, हम जो लॉज, जो सोवरेनिटी एंड द स्टेट, पावर ऑफ स्टेट, तो ये जो पावर है, ये मिशेल फूको की नजर में पावर नहीं है, बट पावर इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज द एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ व्हाट, नॉलेज, ठीक है। जो एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ नॉलेज है वो क्या है, पावर है, ठीक है। तो नॉलेज एंड पावर आर इंटर रिलेटेड और रिलेटेड टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू मिशेल फूको, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो ही सेज दैट पावर इज एवरीवेयर एंड वन अदर अनदर कंसेप्ट इज देयर लाइक नॉलेज इज पावर, ठीक है। सो नॉलेज एंड पावर आर रिलेटेड टू ईच अदर। बेसिकली पावर जो नेटवर्क है, पावर हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। पावर क्या है, एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ नॉलेज है, पावर एक एपिस्टेमोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है अकॉर्डिंग टू मिशेल फूको। So these all things are there, in power knowledge. This is the term basically that is related to Michel Foucault, that is given by Michel Foucault. So in next videos, we will be talking about the different like panopticism and all, as I told you. So I think समझ में आ गया होगा. So thank you very much. We will be meeting in the next video soon. So thank you again.